students, welcome to my channel Tansuman Classes. I am Suman Kanwar to teach you chapter number 4 in history, tribals, Dikus and the vision of a golden age. And in this chapter you read about tribal people, the occupation of the people and how the state collect the revenue from the tribal peoples. And today we start new topic Birsa Munda. Who is Birsa Munda? And as well as today we read about the Relibian people and the tribal peoples, how they revolt against the British law. So in this chapter we read lots of things about the life of these people, of the tribal people. So if you need question answers of this chapter, write him in a comment box, so as soon as possible we provide you. And don't forget to like and subscribe my channel. So let's start the new topic, the Birsa Munda. So in fact the previous knowledge, by the 19th century tribal peoples in different parts of India were involved in a variety of activities. बहुत सारी activities में वो involved थे. But the tribal people engaged in jhum or shifting cultivation. Shifting cultivators are found in the hilly area, forest and northeast central India. So some people livelihood are hunting and gathering forest product. At the time they exchange good, and after that they supply produce of silk. And एज द टाइम बिगिनिंग, जैसे जैसे टाइम शुरू होता गया उनका जो पास में जो जैसे जैसे समय चलता गया, ब्रिटिशर्स एफर्ट टू settle down the cultivators was not easy, but it was brought several changes forest law to make forest law. So this affected the tribal people lives, and the British extend their control over all forests and declare the forest was state property. So the reserve forest people were not allowed to move freely from one place to another place. So as a result, several jhum cultivators moved to another areas. Many tribal people react against the conical forest law. During the 19th century, traders and moneylanders began to came into the forest, and they offered cash loan to the tribal people. They offered the people a cash loan, and the tribal people asked them to work for wages. उनको wages दी जाने लगी, उनको तनख्वाह दी जाने लगी, मजदूरी दी जाने लगी उनको. And the plight of the tribals who had to go away far from their homes for work, as well as when even wars. और उनकी जो स्थिति थी बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही थी, और उनकी जो लाइफ थी उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया. तो द ट्राइबल पीपल्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री rebelled against the law. And today we read about the closer look at the 19th and 20th century. So let's start the topic, a closer look. Throughout the 19th and 20th centuries, people group of different parts of the country rebelled against the changes in law and restrictions on their practices and the new taxes they had to pay, and the exploitation by the traders and moneylenders. As Scots rebelled in 1831-32, Santals rose and revolted in 1855. And the Bastar rebellion in central India broke out in 1910, and the Warli revolt in the Maharashtra in 1940. The movement of this Birsa lead was one such movement. यानी कि अब जब कानून है, उन्होंने बड़ी पाबंदियां लगा दी थी, बड़े रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे लोगों पर कि वो एक जगह से दूसरी जगह या मूवमेंट नहीं करेंगे. न्यू टैक्सेस उनके ऊपर ला दिए गए थे, और वो अब ये टैक्सेस कैसे पे करें, उनके ऊपर ये बड़ा मुश्किल हो रहा था. तो ये मजदूर बनने के लिए तैयार हो गए. लेकिन अब जो मनी लैंडर्स और ट्रेडर्स ने जो इनको लोन दिए थे, अब वो लोन ये लोग जब लेते थे तो बहुत ज़्यादा इनके ऊपर उन्होंने चार्ज लगा दिया. और साथ ही साथ में 1831 एंड 1832 के बीच में कौल आदिवासी जो थे, और साथ ही साथ में 1855 में इन लोगों ने बगावत शुरू कर दी, रिवॉल्ट कर दिया इनके खिलाफ. एंड बस्तर विद्रोह के नाम से ये जाना जाता है, जो कि 1910 में हुआ. अब जो 1910 में बस्तर विद्रोह हुआ, इसमें क्या था कि जो महाराष्ट्र
और साथ ही साथ वर्ली में विद्रोह हुआ, महाराष्ट्र के वर्ली में विद्रोह हुआ 1940 में हुआ। एंड द गवर्नमेंट दैट द बिरसा लीड वाज वन सच अ मूवमेंट, जिसमें कि आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? बिरसा। बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वह भी इसी तरीके का विद्रोह था। अब वो विद्रोह क्या था, क्या बिरसा ने कोशिश करी? और आपने जैसे कि स्टार्टिंग में पहले ही हमने पढ़ा था कि जो बिरसा है वो एक ट्राइबल थे और ये झारखंड में रहते थे। तो अब बिरसा मुंडा के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं कि इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा और इन्होंने किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स हैं उनके अगेंस्ट खड़े हुए। सो द बिरसा मुंडा, अब बिरसा मुंडा का वो जन्म कहाँ हुआ था? तो बिरसा मुंडा वॉज बॉर्न इन द मिड 1870, द सन ऑफ अ पुअर फादर। ही ग्रो अप अराउंड द फॉरेस्ट ऑफ द बोकांडा। यानी बिरसा का जो बचपन है वो जो पैदा हुए थे वो बहुत गरीब परिवार में हुए। 1870 में इनका जन्म हुआ और ये क्या थे? ग्रेजिंग शेप, प्लेइंग द फ्लूट एंड डांसिंग एंड लोकल अखाड़ा। यानी लोकल जो अखाड़ा में बकरियां चराते हुए ग्रेजिंग शेप्स एंड गॉड्स, साथ ही साथ बांसुरी बजाते हुए स्थानीय अखाड़ों को गीत नाच गाते रहते थे। इनकी जो परवरिश है ना, हिज फादर हैड टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस लुकिंग फॉर वर्क। इनके फादर काम की खोज में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। एज ए एडोलसेंट, और जैसा कि जो एक लड़कपन जो था भटकते रहते थे, एंड एडोलसेंट बिरसा हेड टेल्स ऑफ द मुंडा अपराइजिंग फॉर द पास्ट एंड सॉ द Sardars and the Munda uprising for the past and saw the Sirdars, the Munda leaders of the community uprising the people of revolt। यानी इसमें क्या था कि काम की तलाश में बिरसा, अतीत में अगर देखें तो बिरसा ने विद्रोह की काफ़ी कहानियां सुन रखी थी। काफ़ी इन्होंने बिरसा जो विद्रोह किया था उनके बारे में इन्होंने काफ़ी कुछ सुन रखा था कि कैसे बिरसा लोगों ने अपनी समुदाय को बचाने की कोशिश करी। तो बिरसा के समुदाय के लोग इसको स्वर्ण युग की बात करते हैं, इसको स्वर्ण युग कहते हैं। सो द टॉक फॉर द गोल्डन एज व्हेन द बिरसा मुंडा हैड बीन फ्री फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ ड्यूक्स। यानी इसको स्वर्ण युग का नाम क्यों दिया गया है? इसमें ऐसा क्या था, इन्होंने क्या किया था ऐसा जिससे कि इसको स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? और साथ ही साथ उन्होंने किससे उनको फ्री किया था? वहाँ के जो लोग थे, जो कॉमन पीपल थे, उनको किससे इन्होंने दूर किया? एक बार फिर हम इस समुदाय के बारे में पढ़ेंगे कि क्या था। सो दैट देयर वुड बी अ टाइम व्हेन द एस्ट्रोनॉमिकल राइट्स ऑफ द कम्युनिटी वुड बी डिस्ट्रॉयड। They saw themselves as descendants of the original settlers of the region, fighting for their land and remaining people of need to win back their kingdoms। ये चाहते थे कि अपनी जमीन की लड़ाई लड़े और लोगों को याद दिलाते थे कि कैसे हमें हमारा साम्राज्य, हमारा जो किंगडम है वो वापस हमें अंग्रेजों से लेना है। और बिरसा जो है वैन टू अ लोकल मिशनरी स्कूल, वो यहाँ के एक जो स्थानीय मिशनरी स्कूल था उसमें जाया करते थे। एंड लिसन द sermons of the missionaries, और मिशनरी के उपदेश, ये जो sermons जो होते थे वो सुनते थे उनके बारे में। They to be heard, it said that it was possible for the Mundas to attain the kingdom of heaven। और ये समुदाय जो है स्वर्ण का जो है वो युग हासिल कर सकता है, ये मानते थे ऐसा। अब बिरसा समुदाय जो है स्वर्ण का साम्राज्य हासिल कर सकता है। वो कैसे कर सकता है? इट वॉज पॉसिबल फॉर द मुंडास टू अटेन द किंगडम ऑफ हेवन एंड रिगेन देयर लॉस्ट राइट, और वो अपने खोए हुए जो अधिकार हैं उनको भी वापस ले सकते हैं। दिस वुड बी पॉसिबल इफ दे बिकेम ए गुड क्रिश्चियन एंड गेव अप देयर बैड प्रैक्टिसेस। यानी कि अब उनको लगता था कि हमारी जो जमीनें हैं हम वापस ले सकते हैं, हमें हमारा विश्वास है वो नहीं तोड़ना चाहिए। और साथ ही साथ गाँव में जो है हमें अपने विचार बदलने पड़ेंगे। आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन करना चाहते थे ये। And the Christians gave up their bad practices। Later, Birsa also spent some time in the company of the prominent
विश्वास पैचर्स, एंड साथ ही साथ इनको बड़ा विश्वास था, ये वैष्णव थे ये। तो ही रॉड द स्क्रैच थ्रेड द बिगिन टू वॉल्यू एंड इम्पोर्टेंट ऑफ द प्योरिटी ऑफ द पिटी, यानी ये क्या चाहते थे कि जादू टोने में विश्वास ना रखे, गांव की साफ सफाई लोग ध्यान रखे और प्योरिटी पे ध्यान दें। और यहाँ पे लिक्विड का इस्तेमाल, बिरसा वॉज डिस्प्ले इन्फ्लुएंस फॉर द मैनी ऑफ द आइडियाज केम टू टच विद द ग्रोइंग अप ईयर्स। हिज मूवमेंट वॉज एम एट रिफॉर्मिंग ट्राइबल सोसाइटी, ये सोसाइटी में सुधार करना चाहते थे। ही आर्ग्यूड द मुंडास टू गिव अप ड्रिंकिंग लिक्विड, ये शराब के सेवन नहीं कराना चाहते थे। क्लीन देयर विलेजेस, अपने गांव को साफ रखिए। स्टॉप बिलीविंग इन द विच क्राफ्ट और स्कवरी, यानी जो जादू टोना है उससे दूर रहिए, ये अपने समाज को ऐसा शिक्षा देते थे। और साथ ही साथ मुंडा चाहते थे कि बिरसा जो काल था वो वापस आ सकता है अगर हम जो है, अगर हम लैंडलॉर्ड से तरीके से अपनी जमीन जो है, अपने जीवन शैली को नष्ट ना करें। और हिंदू जमींदारों का भी लगातार इन्होंने विरोध किया। ही सॉ दैम आउटसाइडर फोर्सेस दैट वर रनिंग द मुंडाज वे ऑफ लाइफ, और बाहरी जो जीवन शैली है उन्होंने ही बिरसाओं के, मुंडाओं के ये जो लाइफ स्टाइल है उसको नाश किया है, उसको विनाश के रास्ते पर लेकर आए हैं, ये ऐसा मानते थे। सो इन 1895 बिरसा आर्ग्यूड दैट फॉलोअर्स टू रिकवर देयर ग्लोरियस पास्ट, इस वजह से 1895 में बिरसा के जो फॉलोअर्स थे वो रिकवर करना चाहते थे अपना ग्लोरियस पास्ट, अपना स्वर्ण युग लाना चाहते थे। ही टॉक फॉर अ गोल्डन एज इन द पास्ट, जैसा कि वो अपने अतीत में जीते थे, जैसा कि वो पहले गोल्डन एज में जी रहे थे। वो अपने फॉरेस्ट और फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स पे ही डिपेंड थे एज अ सतयुग, जिसको कि सतयुग का नाम दिया गया है, द एज ऑफ ट्रुथ व्हेन मुंडास लिव्ड अ गुड लाइफ एंड कंस्ट्रक्टेड embankments and trapped nature springs, planted trees और ऑर्चिड्स, यानी अपने बागानों के साथ खुश थे ये। अपने जो लोग हैं वो नेचुरल, जो उनकी सोच थी, पेड़ बाग लगाते थे, कुदरती झरनों कर नियंत्रण करते थे, और साथ ही साथ अपने पेड़ और बाग लगाने के लिए अपनी खेती करते थे। इस चीज को वो आज भी मानते थे एंड डिड नॉट किल द बर्थन एंड द रिलेटिव्स, और जो प्रकृति है उसको वो नष्ट नहीं करना चाहते थे। दे लिव्ड ऑनेस्टली, वो ईमानदारी से रहना चाहते थे। एंड बिरसा ऑल्सो वांटेड टू पीपल टू वंस अगेन टू वर्क ऑन देयर लैंड, और बिरसा वापस चाहते थे कि लोग अपनी जो जिंदगी है वो वापस उसी तरीके से जिंदगी जिए जैसा कि वो पहले जी रहे थे। तो सेटल डाउन एंड कल्टिवेटेड देयर फील्ड्स, और साथ ही साथ एक जगह रहकर, एक सेटल डाउन हो जाए और एक जगह रहकर वो खेती करे, यानी अब उनको ये सब सीखने की जरूरत है। तो व्हाट वॉरिड ब्रिटिश ऑफिसर्स मोस्ट वाज द पॉलिटिकल एम ऑफ बिरसा मूवमेंट, और अब इससे तो क्या था, अंग्रेजों को जो बिरसा मुंडा का ये जो आंदोलन था उससे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी, क्योंकि बिरसा ने कोशिश करी कि वहाँ के जो समाज के लोग हैं वो जादू टोना ना करे, ड्रिंकिंग लिक्विड और जो शराब का सेवन ना करे, गांव को साफ सफाई में रखे, वापस अपने पुराने युग की तरफ जाए जो उनका सतयुग कहलाता था, द एज ऑफ ट्रुथ की तरफ जाए, और लोग वापस वही चीजें जो नेचुरल जो स्प्रिंग थी, झरने जो हैं वो प्लांट ट्रीज करें, ऑर्चिड्स में जाएं, अपना सामान वहाँ से उठाएं, अपने लिए नेचर से चीज़ें लें, उसमें बिलीव करते थे। और इन सब के खिलाफ थे कौन, ब्रिटिश ऑफिसर्स, क्योंकि उनको अब चिंता लग गई थी कि कहीं ना कहीं ये उनको वापस वो पुरानी यानी तरफ ना ले जाए। For he wanted to drive out the missionaries, moneylanders, Hindu landlords, and the government of set up as a Munda Raj was Birsa at its head. और अब क्या था कि आंदोलन जो मिशनरी हैं, महाजन हैं, हिंदू जो भूस्वामी हैं, जो लैंडलॉर्ड्स थे, और साथ ही साथ सरकार को बाहर निकल कर और बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहते थे। यानी आंदोलन जो है वो लंबा होना चाहता, बड़ा हो रहा था, और साथ ही साथ में अब ब्रिटिशर्स को इससे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, उनकी ताकत बढ़ रही थी, और यह आंदोलन उनकी ताकतों को, मुंडाओं की सारी समस्याओं को मानता था। सो
इसमें क्या था, द लैंड पॉलिटिकल ऑफ द ब्रिटिश वॉज डिस्ट्रॉइंग देयर ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम। उनको लगता था कि ब्रिटिशर्स ने उनकी जो डिस्ट्रॉय करा है, क्या किया है, ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम को उन्होंने खराब किया है ब्रिटिशर्स ने। तो बिरसा जो थे वो इनके अगेंस्ट थे। हिंदू लैंडलॉर्ड्स, मनी लैंडर्स वर टॉकिंग ओवर देयर लैंड्स, और उनसे उनकी जमीनें जो है वो वापस चाहते थे, और मिशनरियों से वापस चाहते थे कि इनकी जो ट्रेडिशनल है वो वापस लौटाया जाए, वापस लोग अपने पुराने कल्चर की तरफ आए। एज द मूवमेंट स्प्रेड द ब्रिटिश ऑफिसर डिसाइडेड टू एक्ट, और जब ये आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों ने बड़ी सख्ती से डिसाइड किया। क्या डिसाइड किया, दे अरेस्टेड बिरसा इन 1895। जैसे जैसे लोग अब बिरसा का कहना मानने लग गए थे, लोग अट्रैक्ट हो रहे थे बिरसा की तरफ, लेकिन अब ब्रिटिशर्स को इनसे खतरा था, तो इन्होंने अरेस्ट किया 1895 में एंड convicted him in a charge to rotting the jail him for 2 years। और दंगे फसाद करने के आरोप में इन्होंने क्या किया, 1895 में इनको गिरफ्तार कर लिया, इनके ऊपर चार्ज लगा दिया गया, और साथ ही साथ में इनको जेल में डाल दिया गया। और जेल में डालने के बाद ये 2 साल तक की इनको सजा सुनाई गई। एंड 1891 द बिरसा वाज रिलीज इन 1897, जब बिरसा वापस रिलीज हुए, जेल से जब रिलीज हुए, ही बिगेन टॉर्चिंग द विलेज ऑफ द गैदर सपोर्ट। और जब गांव गांव घूमते रहते थे अपने समर्थन के लिए, लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत तरीकों की भाषा का इस्तेमाल करते थे। ही यूज अ ट्रेडिशनल सिंबल एंड लैंग्वेज टू रोज पीपल। इन्होंने लोगों को उठाने की कोशिश करी, इन्होंने लोगों को जगाने की कोशिश करी, ताकि लोग अपने पुराने ट्रेडिशन को वापस अपनाएं। और आर्ग्यूइंग दैम टू डिस्ट्रॉय रावण, और आर्ग्यू करते थे किस चीज को खत्म करने के लिए, रावणों को खत्म करने के लिए, रावणों का डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, ये उनका साम्राज्य खत्म करना चाहते थे, जिनको कि ये दिकूज और यूरोपियन के नाम से जानते थे। एंड स्टैब्लिश अ किंगडम अंडर देयर लीडरशिप, और एक किंगडम, एक साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे ये अंडर हिज लीडरशिप। बिरसा फॉलोअर्स बिगेन ट्रेडिंग टू द सिंबल ऑफ द ड्यूक्यूज एंड द यूरोपियन पावर। और बिरसा के जो अनुयायी हैं वो दिकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे, यानी वो उस पर अटैक करने लगे। दे अटैक पुलिस स्टेशन, और बिरसा को जो मानते थे, जो उनके फॉलोअर्स थे, उन्होंने पुलिस स्टेशन, चर्च एंड रेडेड द प्रॉपर्टी ऑफ द मनी लैंडर्स एंड जमींदार। और जमींदार, मनी लैंडर्स और पुलिस प्रॉपर्टी और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे इन्होंने अटैक किया। दे रेज ए वाइट फ्लैग एज अ सिंबल ऑफ बिरसा राज, और इन्होंने एक वाइट कलर का फ्लैग लिया जिसको कि इन्होंने बिरसा राज के नाम पे सिंबलाइज किया, इनको लोगों को दिखाया वो कि कैसे संपत्ति पे इन्होंने धावा किया, कैसे गवर्नमेंट जो प्रॉपर्टी थी उस पर अटैक किया, और सफेद झंडा उन्होंने एज अ सिंबल रखा। सो इन 19 द बिरसा डाइड ऑफ द क्लोरिया एंड द मूवमेंट फैडेड आउट, यानी अब उनको हेजा हो गया था, है ना, इन 19 में, और मूवमेंट फैडेड आउट, और अब ये आंदोलन ठंडा पड़ गया था। सो हाउएवर द मूवमेंट वाज सिग्निफिकेंट एंड एट लीस्ट 2 ways। अब ये किस तरीके से सरकार इसको बहुत महत्वपूर्ण था, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, किस तरीके से। फर्स्ट, it forced the colonial government to introduce law that the land of the tribal could not be easily taken over by the dukes। यानी कि जो ड्यूक्यूज जो लोग हैं वो आदिवासी की जमीनों को बड़ा इजीली टेक कर रहे थे, बड़ा इजीली उनको ले रहे थे, तो अब उनको उसके बदले क्या करना पड़ा था, एक लॉ लाना पड़ा था, उसको फोर्सफुली उनको गवर्नमेंट को लाना पड़ा ताकि उनकी जमीनों को ना ले सके। और साथ ही साथ सेकंड, इट सोड वंस अगेंस्ट दैट द ट्राइबल पीपल हैड द कैपेसिटी टू प्रोटेस्ट द अगेंस्ट, और दूसरा कि ट्राइबल पीपल हैं वो भी उनके खिलाफ खड़े हो सकते हैं, इनजस्टिस एंड एक्सप्रेस देयर एंगर, और वो भी अन्याय के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, अपने एंगर को दिखा सकते हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं उनके खिलाफ, अपने उनके विरोध, गुस्से में आदिवासी सक्षम है, और दे आर दिस ए ओन स्पेसिफिक वे इन्वेस्टिंग their
ओन रिचुअल्स एंड सिंबल ऑफ स्ट्रगल, जिससे कि वो उनके खुद के खास उनके क्या होते थे, इनके रिचुअल्स, इनकी रस्म जो होती थी, इनके रीति रिवाज जो होते थे, रस्में जो होती थी, और ख़ास तरीके से स्ट्रगल जो था, इनका जो संघर्ष था, इसको भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने स्ट्रगल किया. सो फाइनली द ट्राइबल ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री rebelled against the changes in the law and restriction of the pesticides and exploitation by the traders and moneylenders, and the Birsa Munda lead the worth mentioning here. Birsa Munda fought to save the people of the trouble, free from them the savagery of Dikus, outsiders जिनको बोलता जाता था, Dikus कहा जाता था. Thousands became followers. They were unhappy under British rule. A movement began under the leadership of Birsa Munda. Spread British officials arrested Birsa in 1895, and but soon after releasing the toured the villages of the gather support, he argued people to destroy Dukus and Europeans and establish a kingdom under his leadership. बिरसा मुंडा ने अपनी लीडरशिप के अंडर इन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक अपना ग्रुप बनाया. एंड बिरसा डाइड इन 19. द मूवमेंट had been faded out, but the significance cannot be undetermined. और जो उनका सहयोग था, हम उसको नहीं भूल सकते कि किस तरीके से इन्होंने जो ट्राइबल पीपल्स हैं उनको सपोर्ट किया, और इन्होंने ट्राइबल पीपल्स की जो पावर है उसको भी एक्सप्रेस किया कि कैसे जो है लोग हैं वो इनजस्टिस और अगेंस्ट हो सकते हैं उनके, और साथ ही साथ अपने लिए लॉ और कानून जो है वो बनवाए कि कैसे गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करे एक लॉ जिससे कि ट्राइबल पीपल्स की ज़मीनें ना छीनी जाए. सो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा. थैंक यू.